So one can see these concrete mixer trucks which have stopped here just before the RMC plant. And this is a complete residential area, as you can see. There are buildings and bungalows all over. You still can see some plants, but most of them, as you see here, they are covered in dust. So these trucks have now halted here and stopped here. From the 15th, all operations of these RMCs have been suspended. You can see in the distance all the trucks parked inside the RMC plant, which is one of the biggest RMC plants of this place, of Wagholi. And these huge RMC trucks, cement mixer trucks, have been parked here and are stationary here because operations have been stopped from the 15th when the PMC took stringent action and halted operations of these RMC plants. Plus, the RMC Association has also called for a halt of operations because of the demolition which took place in Khandve Nagar, in Kharadi, and in Undri, where 7 of these RMC plants were demolished by the anti-encroachment department of the Pune Municipal Corporation. So this is a complete residential area. I'm Prince Chaudhary reporting for Pune Time Mirror. I'm live at Ubale Nagar in Wagholi, Chowkidani Road. And as you can see behind me, there is an RMC plant. There are about 4 or 5 of these RMC plants in and around this area. So it's basically a question of dust versus development. So these plants have been now put into a temporary suspensions. They are not working from the 15th of this month because the PMC has come down very hard on these plants because of the respiratory problems which the residents of the areas are facing due to the huge amount of cement dust which rises in the air every time concrete mixer passes from here. So the RMC Association has called for a halt of all the operations because on the 15th, just before 15th in Khandve Nagar, right? Yes. In Khandve Nagar, the PMC demolished a lot of these RMC plants. In Undri also 7 of them were demolished. So they have taken objection against that, and the RMC Association has called for a kind of a stoppage of work till the PMC gives them an order to start work again, because there's a lot of air pollution in the area. Now, the standing committee of the Pune Municipal Corporation has also instructed the administration to remove and relocate these plants to another place which is not a residential area, to the outskirts of the city, because the people of these areas are having a lot of pulmonary problems. As you can see, there is no road here. This entire area is just covered by cement dust. Plants don't grow. The dust goes all over, everywhere, into cars, into the houses, into people's noses, everywhere. So the bigger questions remains, will these plants actually be relocated? So there are these key operators here, like there is Arelcon, RMC and Premchand RMC along with others. And in a nutshell, if you ask me, the cement dust ने यहाँ के लोगों के नाक में दम कर दिया है. So this is a problem which are being faced by the people here. Let's talk to them and find out what the actual problem is. तो आपको क्या लगता है, ये परमानेंटली बंद रहेगा या वापस फिर चालू हो जाएगा? ये तो परमानेंटली बंद नहीं हो सकता है सर. बीच में भी ऐसा ही हुआ था, एक बार बंद किया था 1-4 दिन, फिर रोड पे पानी वगैरह मारता था ताकि वो डस्ट ना उड़े. फिर 4 दिन के बाद फिर चालू कर देता था प्लांट ने. तो यहाँ पे पहले रास्ता वगैरह हुआ करता था, बराबर है? अभी तो रास्ता भी नहीं है और यहाँ पेड़ वगैरह पे सब जगह पे आप देख रहे हैं सीमेंट का डस्ट होता है. तो इससे क्या क्या तकलीफ होता है सर? आप मराठी में भी बोल सकते हैं. प्रॉब्लेम नाही सर. ह्याच्यासाठी आम्हाला तर यायला जायला खूप त्रास आहे. वर्षानुवर्ष आता आम्ही साधारण इथं 5 वर्ष झाले हा एरियात राहतो. आम्हाला एक गाडीसाठी किंवा आता ह्या टायमाला इथे कोणताही स्कूलचा गाडी किंवा बस वगैरे येत नाही. शेवटी आम्हीच मुलांना शाळापर्यंत सोडावं लागतो. खूप त्रास होतो आहे सर. म्हणजे ह्यात राहतो आम्ही, पण कसं तरी फक्त तो मतलब ब्रीदिंग वगैरह, सांस लेने सर के लिए बहुत तकलीफ होती है सर. बहुत तकलीफ होती है. ये एरिया में ये टाइम पे तो फिर भी चल जाते, लेकिन बारिश के एरिया में, बारिश के टाइम पे अगर आप देखते हो तो ना 2 व्हीलर आती है. कई बार तो सर हमारा
4 व्हीलर तक हम बाहर छोड़ के आते हैं। पैदल क्योंकि वो फंस रोड का कंडीशन इतना बेकार रहता है सर, इसमें बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा है। तो आप पीएमसी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम रेगुलर टैक्स पे करते हैं यहाँ पे, ना यहाँ पे रोड की सुविधा है, पानी की सुविधा है, और वो सुविधा है भी नहीं, तो हमें यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें आ रही है आरएमसी प्लांट की वजह से। धूल है, ये सब कितने सारे, अभी हमारे घरों में सबको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। अगर इनकेस रात में किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, एम्बुलेंस को बुलाना पड़े, तो एम्बुलेंस भी यहाँ पे नहीं आती है। ना कोई ऑटो वाला आता है, ना ओला उबेर वाला आता है, ना फूड डिलीवरी वाला आता है। तो इतनी सारी दिक्कतें सिटी में हम रह रहे कि गांव में रह रहे, गांव में भी इतनी सारी दिक्कतें है नहीं जो कि हम सिटी में फेस कर रहे हैं। करेक्ट। तो इस पर कुछ तो काम होना चाहिए, पीएमसी का काम होना चाहिए। अभी आरएमसी प्लांट वालों को हम बोल के थक गए कि बाबा हमें धूल का प्रॉब्लम आ रहा है। हम जब बोलेंगे तो वो 2-4 दिन यहाँ पे पानी स्प्रेड करते, फिर वापस 2-4 दिन बाद वो वापस उनका वैसा ही चालू। उनके ड्राइवर लोग मोबाइल देखते देखते वो ड्राइविंग करते, इतनी हेवी रैश ड्राइविंग करते कि अगर कोई वहाँ पे गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। अभी पीएमसी कब एक्शन लेगा कि यहाँ पे लोगों की जाने जाएगी, तब वो एक्शन लेगा कि हमारी सबकी जान जाए, तब तक वो देखता रहेगा। इस पे कुछ तो होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो आरएमसी का एसोसिएशन जो रेडी मिक्स प्लांट का, उन्होंने 15 तारीख से एक स्ट्राइक किया है जिसमें वो काम बंद किया है, और पीएमसी का जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने बताया कि ये सब प्लांट यहाँ से कोई दूसरी जगह पे रीलोकेट होगा। तो आपको क्या लगता है, ऐसा होगा क्या नहीं होगा? देखिए, होगा तो अच्छा है, जल्दी हो जाना चाहिए ये, और परमानेंटली हो जाना चाहिए। करेक्ट। अगर हाँ, क्योंकि इसका इधर से जो हमको डिस्टर्ब मिल रहा है, गाड़ी जाने के बाद इतना धूल पीछे से चलता है, वो सब घर के अंदर ही जाता है। और गाड़ी, इसके बाद गाड़ी ना गया तो भी हवा जब चलता है तब भी पूरा रोड का धूल घर के अंदर ही चला जाता है। कोई रास्ते से आ नहीं सकता है, रास्ता भी इतना बहुत ख़राब हो गया, छोटा गाड़ी भी नहीं आता है। इनका तो बड़ा गाड़ी है, हेवी गाड़ी है, वो आ जाता है, कोई इशू नहीं होता है। हमारा बहुत दिक्कत होता है इधर चलना फिरना, बारिश हुआ तो भी बहुत ख़राब होता है, गाड़ी बाइक लेके जाना मुश्किल हो जाता है। तो आपके घर में कोई इस डस्ट की वजह से बीमार गिरा है? जी, लगभग बीमारी है सब। अभी क्या पूरा खांसी हो गया, वो घर के अंदर ही चला जाता है सब डस्ट, पूरा डस्ट। जी, सांस लेते टाइम दिक्कत होता है। तो सर आप भी यहीं पे रहते हो? तो ये जो डस्ट है, सीमेंट डस्ट है, जो इतने सालों से लोगों को यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है, बंगलोज है, तो आपको बेसिकली इससे क्या तकलीफ़ हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं कि पीएमसी ने बोला है कि इसे रीलोकेट कर देंगे कहीं और, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको यहाँ से गिरा देंगे। तो आपको क्या लगता है, ये हो सकता है? सर, ये तो पीएमसी को बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एरिया रेसिडेंशियल एरिया है, हम लोगों को रहने को बहुत तकलीफ़ हो रहा है सर। ये आरएमसी के गाड़ी रोज़ कितने आते जाते हैं सर, कोई हिसाब नहीं है। एक गाड़ी आगे जाते हैं, हम लोग पीछे से बाइक लेके निकलते हैं सर, तो पूरा धूल मट्टी हो जाते हैं हम लोग। रहने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। वो गर्मी का सीज़न है, रूम का खिड़की खुल के रखना चाहिए, हम लोग नहीं खुल सकते हैं, नहीं खुल सकते। इतना डस्ट आते हैं रूम के अंदर सर, हम लोगों का सांस लेने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। करेक्ट। ये, और मैं आपके ज़रिए पीएमसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जल्द से जल्द मतलब एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर।